Hello friends, in our last video I have discussed the concept of pin diagram of 8251. Now we are just moving towards the concept of block diagram of 8251 U-sharp. Okay, so as I know that 8251 is basically a programmable communication interface device that is also known as U-sharp, that is universal synchronous asynchronous receiver and transmitter logic. Okay, so when we are talking about the block diagram of 8251, so the very first block is basically your data bus buffer. Okay, so here D0 to D7 is basically your 8 data bus line, that is also known as system bus, because through which the microprocessor can communicate external devices. That's why it is known as system bus. Okay, so this data bus buffer will be considered as a tri-state buffer, because in this we can perform read operation, write operation, as well as this data bus buffer may be considered as high impedance state. Okay, so that's why this data bus buffer will be known as tri-state buffer. Data bus buffer not only contain the data information, but also it can contain the control information as well as status information also. Okay, so that status information is basically read by the microprocessor, and the control information is basically write by the microprocessor to control the operations of 8251. Okay, so that's why we generally use this data bus buffer. The next one is read-write control logic. Actually, read-write control logic, we have total 6 inputs. The first one is reset. Reset is basically used to reset 8251. What do you mean by reset? Reset means in this particular, if this particular pin is enabled, then 8251 will be in idle condition. Okay. रिसेट विल बी हाई. लेट सपोज अगर रिसेट की वैल्यू हमारी 1 होती है तो ये रिसेट की वैल्यू 1 हमारी कंटिन्यू रहेगी जब तक हम मोड वर्ड में कोई दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं. ओके, जब तक माइक्रोप्रोसेसर मोड वर्ड में कोई दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक रिसेट की वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी. मतलब हमारा 8251 आइडल कंडीशन पे रहेगा. जैसे ही मोड वर्ड में कोई दूसरा कंटेंट प्रोवाइड करेगा माइक्रोप्रोसेसर, तुरंत ये जो रिसेट होता है इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है और फिर वो नॉर्मल वर्किंग मोड में ऑपरेट करने लगता है. नाउ अब ये मोड वर्ड क्या होता है, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट इनपुट इज योर क्लॉक पल्स. क्लॉक पल्स बेसिकली ये जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन होता है उस रेट ऑफ ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने में बेसिकली इसका यूज किया जाता है क्लॉक का. दैट मीन्स जो बॉड रेट होता है या बिट रेट होता है इनको कंट्रोल करने में हम लोग क्लॉक पल्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज C/D कॉम्प्लीमेंट. सो अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि डेटा बस बफर नॉट ओनली कंटेन द डेटा इंफॉर्मेशन, it may contain the control information, the status information also. Okay, so let's suppose microprocessor want to perform write operation. Okay, so C/D complement is basically used in conjunction with RD complement, WR complement and CS complement. Okay, so let's suppose if I am the microprocessor and I want to perform write operation, तो अगर मुझे राइट करना है तो मैं डेटा बस बफर को ढूंढूंगा कहाँ पर है. उस डेटा बस बफर में कुछ कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा. अब माइक्रोप्रोसेसर जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है दैट मे बी अ डेटा, वो डेटा हो सकता है. दैट मे बी ए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी उस पर्टिकुलर बफर में प्रोवाइड करा सकता हूँ ताकि 8251 को कंट्रोल किया जा सके. ओके, तो अगर माइक्रोप्रोसेसर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो राइट डेटा का परफॉर्म कर रहा है या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को राइट कर रहा है, इसके बारे में कौन डिस्क्रिमिनेट करता है वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ C/D कॉम्प्लीमेंट के थ्रू. अगर इस C/D कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर डेटा D कॉम्प्लीमेंट विल बी इनेबल्ड. दैट मीन्स वहां पर हम लोग डेटा को राइट कर रहे हैं. ओके, उसी तरह अगर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को राइट करना है तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी, C/D कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पर ये 1 होगी. अगर ये 1 है तो इसका मतलब अब यहाँ पर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बेसिकली राइट कर रहा है माइक्रोप्रोसेसर. ओके,
तो उसी तरह अगर हमें रीड माइक्रो प्रोसेसर को रीड परफॉर्म करना है तो सबसे पहले तो वो रीड कंट्रोल लाइन को इनेबल करेगा, मतलब आरडी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो अब हमें रीड करना है, तो रीड भी हम लोग दो चीज़ों को कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डेटा एंड द नेक्स्ट वन इज द स्टेटस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन तो रीड करेगा नहीं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन तो माइक्रो प्रोसेसर राइट करता है, और अगर उसे रीड करना है माइक्रो प्रोसेसर को तो वो स्टेटस इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। तो अब वो स्टेटस को रीड कर रहा है या डेटा को रीड कर रहा है, हाउ कैन वी डिस्क्रिमिनेट इट? with the help of C/D complement value. Okay, if this input pin is value is 1, then status for information is basically read. अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 है तो इसका मतलब डेटा हमारा यहाँ पर रीड हो रहा है। ओके, तो इसीलिए C/D कॉम्प्लीमेंट का जो यूज होता है वो इन कंजक्शन विद RD कॉम्प्लीमेंट, WR कॉम्प्लीमेंट और CS कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका यूज होता है। ओके, चिप सिलेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। चिप सिलेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है कि पर्टिकुलर 8251 चिप को इनेबल या डिसेबल करने के लिए। अच्छा, ये जो एड्रेस लाइन, जैसे सपोज दैट अगर हमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना है, तो अभी तक प्रीवियसली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग A0 बेसिकली एड्रेस लाइन का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर जो C/D कॉम्प्लीमेंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज A0। ओके, और जो CS कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अवेलेबल है A1 से लेकर के A7 जो एड्रेस लाइन हम लोग यूज करते हैं, उस एड्रेस लाइन की वैल्यू को हम लोग एक डिकोडर सर्किट के पास प्रोवाइड करते हैं। फिर वो डिकोडर सर्किट उस पर्टिकुलर आउटपुट को जनरेट करता है और वो आउटपुट that output will be considered as chip select complement value. ओके, तो इस तरह से हम लोग चिप सिलेक्ट कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली होता क्या है कि जो जब माइक्रो प्रोसेसर 8251 डिवाइस से कम्युनिकेट करता है तो समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्ड मॉडम। ओके, सो फॉर मॉडम पर्पस वी जनरली रिक्वायर्स अ मॉडम कंट्रोल, जो मॉडम डिवाइस को कंट्रोल करता है और उसको 8251 या माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराता है। So the third component is your modem control. In this particular case, we have total 4 signals, that is DSR, DTR, CTS and RTS. And all these 4 signals are basically your active low signals, because here we have complement on that. Okay, now we will study it one by one. The very first one is your DSR, that is known as data set ready. सो डेटा सेट रेडी का बेसिकली क्या यूज होता है, ये बेसिकली इनपुट सिग्नल होता है और इस इनपुट सिग्नल के थ्रू मॉडम ये बेसिकली मॉडम में चेक करता है कि जो डेटा सेट है वो डेटा सेट रेडी कंडीशन पे है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये मॉडम को सेट करने में बेसिकली यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज योर डेटा टर्मिनल रेडी। डेटा टर्मिनल रेडी मीन्स इट बेसिकली यूज टू टेल द मॉडम, ये बेसिकली मॉडम को इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि 8251 का जो टर्मिनल है, टर्मिनल मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा ट्रांसमीटर, सो दैट ट्रांसमीटर विल बी कंसीडर्ड एज डेटा टर्मिनल। तो जो डेटा टर्मिनल है वो रेडी है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू मॉडम। द नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट टू सेंड। अब रिक्वेस्ट टू सेंड में क्या होता है कि 8251 जो डिवाइस होती है वो मॉडम के पास रिक्वेस्ट करती है कि वो डेटा को सेंड करे। ओके, एंड CTS कॉम्प्लीमेंट मीन्स मॉडम उसमें उसको रिस्पॉन्स देता है कि ठीक है अब डेटा यहाँ पर सेंड आप कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज बेसिकली द सिग्नल्स ऑफ मॉडम कंट्रोल। Now we have internal bus line also. Okay. Next we have another unit, that is the first one is the transmit buffer and the next one is the receive buffer. So अब ये ट्रांसमिट बफर और रिसीव, लेट सपोज अगर माइक्रो प्रोसेसर 8251 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर ने पैरेलल डेटा प्रोवाइड किया। अब एक्चुअली अगर इस पैरेलल डेटा को हमें पेरिफेरल डिवाइस तक ले जाना है तो हमें इस पैरेलल डेटा को सबसे पहले सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस विल बेसिकली परफॉर्म वाया ट्रांसमिट बफर। तो ये ट्रांसमिट बफर में ही एक बेसिकली हम लोग कंट्रोल लॉजिक यूज करते हैं और उसके थ्रू हम लोग पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। इस ट्रांसमिट बफर को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसमिट कंट्रोल। ओके, और यहाँ पर बेसिकली 3 सिग्नल्स का यूज होता है, TX RDY, TXE एंड TXC कॉम्प्लीमेंट।
तो देखो यहाँ पर हम लोग सारी सिग्नल्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट वन इज द ट्रांसमिट बफर, जहाँ पर हमने TXD का यूज किया है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TXD? द मीनिंग ऑफ TXD इज ट्रांसमिटेड डेटा आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ट्रांसमिट बफर की, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर वर्किंग परफॉर्म करते हैं। Let's suppose if we are talking about transmitter unit. So in the transmitter unit we have actually two registers. Okay, the first one is known as transmitted buffer and the next one is known as output register. Okay, और इस output register से ये TXD हमारा connected होता है। TXD का मतलब होता है transmitted डेटा आउटपुट। ओके, तो सपोज दैट माइक्रो प्रोसेसर के पास इंफॉर्मेशन थी, पैरेलल इंफॉर्मेशन, माइक्रो प्रोसेसर ने वो पैरेलल इंफॉर्मेशन इस ट्रांसमिटेड बफर के पास प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये पैरेलल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। अब ये पैरेलल इंफॉर्मेशन पहले सीरियल में कन्वर्ट होगी और वो सीरियल में कन्वर्ट होने के बाद इस आउटपुट रजिस्टर में जाकर के सेव हो जाएगी और उसके बाद TXD सिग्नल क्या करेगा, TXD के थ्रू हम लोग इस सीरियल डेटा को पेरिफेरल डिवाइसेस के पास सेंड करते हैं। ओके, सो दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ दिस ट्रांसमिट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिट कंट्रोल, so in transmit control we have actually three signals. The first one is TX-RDY, the next one is TX-empty and one input signal that is known as TXC. TX-RDY का मतलब होता है ट्रांसमिटेड रेडी। ओके, ट्रांसमिटेड रेडी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिटेड रेडी सिग्नल का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये ट्रांसमिट बफर है वो ट्रांसमिटेड बफर हमारा अभी 0 है। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर अब यहाँ पर जो भी नया कैरेक्टर है दैट विल बी स्टोर्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज TX-empty। TX-empty क्या करता है? ये इस आउटपुट रजिस्टर के स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इफ दिस आउटपुट रजिस्टर वैल्यू इज 0, इफ दिस आउटपुट रजिस्टर वैल्यू इज 0, दैट मीन्स अगर ये आउटपुट रजिस्टर हमारा एम्प्टी है, सो TX-empty की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी, अदरवाइज दैट वैल्यू विल बी 0। TXC का क्या यूज होता है? ये बेसिकली ट्रांसमिटेड क्लॉक पल्स होती है जो कि जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है उसको कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। ओके, इन द सेम वे we have next section, that is receiver section. So in receiver section we have again two registers. The first one is received buffer register and the next one is your input register. Transmitted section में जो हम लोगों ने register लिया था that will be known as output register, और receiver section में जो हम लोग register use करते हैं that is basically your input register. Okay, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी सीरियल डेटा इंफॉर्मेशन होती है वो पेरिफेरल डिवाइसेस इस इनपुट रजिस्टर में प्रोवाइड कराती हैं विद हेल्प ऑफ दिस RxD सिग्नल, और इस इनपुट रजिस्टर में बेसिकली एक लॉजिक अवेलेबल होता है जो ये जो भी सीरियल डेटा होता है उसको पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करने के बाद ये रिसीव्ड बफर में प्रोवाइड होता है। फिर इस रिसीव्ड बफर के थ्रू जो भी पैरेलल इंफॉर्मेशन आई है उस पैरेलल इंफॉर्मेशन को माइक्रो प्रोसेसर के पास सेंड किया जाता है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर बेसिकली वर्किंग होती है। रिसीव कंट्रोल basically have three control signals. The first one is RX-RDY, the next one is RXC, and the next one is synchronization signal. Okay, so RxD का मतलब क्या होता है? RxD का मतलब होता है रिसीव डेटा इनपुट। ओके, तो जो भी ये RxD जो भी डेटा सीरियल डेटा आ रहा है पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू वो इस RxD के थ्रू इस इनपुट रजिस्टर में स्टोर होता है, और इस इनपुट रजिस्टर में वो डेटा हमारा पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और देन पैरेलल इंफॉर्मेशन विल बी सेंड टू द रिसीव्ड बफर, और इसके बाद इस बफर के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है। ओके, तो RX-RDY का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट हमारे पास एक स्काई कैरेक्टर है A, उस कैरेक्टर को हमें ट्रांसमिट करना है, तो सबसे पहले उस स्काई कैरेक्टर A की हमारे पास 8 बिट्स अवेलेबल होंगी। उस 8 बिट्स को हम लोग इनपुट रजिस्टर में स्टोर कराते हैं। ओके, जब कंप्लीट 8 बिट्स की इंफॉर्मेशन इनपुट रजिस्टर में आ जाती है, ठीक है, तब क्या होता है कि ये हमारा पैरेलल डेटा में कन्वर्ट होता है और रिसीव बफर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही रिसीव बफर में हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तब ये जो RX-RDY कंट्रोल सिग्नल्स होता है ये एक्टिव कंडीशन पे आ जाता है। एक्टिव कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जो रिसीव्ड बफर है वो बिल्कुल रेडी कंडीशन पे है माइक्रो प्रोसेसर को डेटा सेंड करने के लिए। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ RX-RDY। RXC का मतलब क्या होता है? RXC इज अगेन बेसिकली द क्लॉक पल्स फॉर रिसीवर सेक्शन।
दैट बेसिकली मैनेज द ट्रांसमिशन रेट। और उसके बाद हम लोग सिंक्रोनाइज सिग्नल का यूज करते हैं। इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि हम लोग सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का यूज कर रहे हैं या एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का यूज कर रहे हैं फॉर डिटेक्टिंग दैट पर्पस। ओके, दैट इज बेसिकली योर ट्रांसमीटर सेक्शन। Okay, so the next part we'll discuss in our next lecture. Thank you.